Class 8 History. The making of the national movement in the year of 1870s till 1947. So inside this part 1 we are going to discuss about what happened in the year of 1857 till the year of 1915. This period also known as post-Gandhian period. Till 1857 इंडिया had witnessed the following. So 1857 तक इंडिया ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें फेस कर चुकी थी कि increase the taxes, heavy taxes in Indian people, and the new laws were made for this people those who were staying in India, for the Indians. Next, hardships for tribals and peasants. जो tribals थे, they were unable to move outside from their and they were unable to stay in their forest areas. The new laws were made for the tribals, so they all were facing problem on that time, and the declining of Indian industries. And we already discussed about the revolt of 1857. So many changes occurred till the year of 1857. So finally now Indians are ready to think that why this all things of Indians resources Britishers they are taking, are these resources belongs to Britishers or the Indians? And finally they got the conclusion that all the thing, everything, whatever is there in India was the people of India. So that all things are just connected to the Indian people, those who are staying in India. All the people belongs to this, might be they belongs to any caste, any color, any religion, any language. This all resources belongs to them, and that's the reason they all came together to fight with the Britishers. So finally, now educated people of India, they formed so many new associations. So the important associations are, so first one is Pune Sarjanik Sabha, next the Indian Association, third the Madras Mahajan Sabha, fourth the Bombay Presidency Association, and the fifth one Indian National Congress. These all new associations formed in India. और ये सारा रीज़न जो एसोसिएशन फॉर्म हुआ था उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था कि वो लोग ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे. क्यों खुश नहीं थे? वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. द फर्स्ट वन वाज आर्म्ड एक्ट. तो ये आर्म्स एक्ट था जो कि पास हुआ था 1878 में. अकॉर्डिंग टू दिस that Indians cannot keep any arms with them. वो कोई भी हथियार इंडियंस नहीं रख सकते थे. अगर रखते थे, कोई भी हथियार अगर पाया जाता था उनके साथ, तो बिना किसी ट्रायल के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था. So that's why people were against of the Britishers. Next, another point, that was Vernaculars Press Act, which came in the year of 1878, and according to this Press Act, that Indians cannot write or cannot type anything against Britishers. If they are typing anything, so Britishers take action against them, and that's the reason that they cannot write the truth also about the Britishers. Everything they have to write in the import. That was Ilbert Bill. So this Ilbert Bill, which was passed in the year of 1884, according to this Ilbert Bill Act, that the bill provided for the trial of British और यूरोपियन पर्सनस बाय इंडियंस. तो अगर कोई भी गलती करता है, माइट बी दे आर यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स, कोई भी है, तो उसके अगेंस्ट जो है अगर कोई इंडियन जज है तो वो डिसीजन ले सकता था. लेकिन इस एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स थे, दे वेंट अगेंस्ट ऑफ दिस, दे अपोज दिस ऑल लॉज, एंड दैट्स द रीजन soon this Albert Bill went back, it was withdrawal, and that's the reason again the Indians went against of Britishers. And finally, the controversial of Albert Bill led to the formation of Indian National Congress. तो लोग जो एल्बर्ट बिल के अगेंस्ट गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ अधिकार इंडियंस को दिए गए थे, इंडियन जज को, लेकिन ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट चले गए, जिसके कारण वो विड्रॉल हो गया. तो सारे के सारे इंडियंस जो थे उन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया, और ये जो ग्रुप बना उसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं. इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स थे. ये सारे के सारे लोग जो थे वो बॉम्बे में मिले इन द ईयर ऑफ 1885 एंड फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC. द अर्ली लीडर्स ऑफ INC वे मोस्टली फ्रॉम बॉम्बे एंड कोलकाता. तो मेनली जितने भी लीडर्स थे वो मेनली फ्रॉम बॉम्बे और कोलकाता से थे, जिसमें दादा भाई नौरोजी,
Ji, R.C. Dutt, Surendranath Banerjee. Apart from Nauroji, who was a businessman settled in London, his name was A.O. Hume. That photo you are seeing right now, that person he is, A.O. Hume, also played a crucial role in bringing Indians together. So he was a retired person, and finally he also played that all the Indians should come together from different various reasons. अब हम बात करें जो फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म किया, वो मेनली मॉडरेट थे. मॉडरेट मतलब वो लोग ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लिख करके लेटर्स दे रहे थे. तो इस तरह से एकदम शांतिपूर्ण प्रिय तरीके से वो अपना जो भी डिमांड था उसको फॉलो करने के लिए ब्रिटिशर्स को कह रहे थे. इनके डिमांड्स क्या थे? फर्स्ट डिमांड वॉज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसमें इंडियंस को भी लिया जाए. सिर्फ ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस के लिए डिसीजन नहीं ले सकते. सो देयर शुड बी अ पार्टीशन ऑफ इंडियंस इन देयर फॉर्मिंग देयर गवर्नमेंट और रिलेटेड टू एनी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. नेक्स्ट वॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड other and important demands were given by the Congress, that was it demanded high positions for Indians in government. तो गवर्नमेंट में जितने भी हाई पोजीशंस हैं वो सिर्फ पहले ब्रिटिशर्स के पास थे. नाउ दे आर टेलिंग दैट इट शुड ऑल्सो गिवन टू द इंडियन पीपल. उनका ये डिमांड था कि जितने भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, इट्स रिलेटेड टू द IAS एग्जामिनेशन, तो ये सारे एग्जामिनेशन जो पहले होते थे वो लंदन में हुआ करते थे. तो अब ये डिमांड करते हैं कि ये एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में नहीं, इसके अलावा इंडिया में भी होना चाहिए कि और इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और इस एग्ज़ाम में बैठ सकें. इसके अलावा नेक्स्ट जो डिमांड था वो था रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट. पहले जो आर्म्स एक्ट लागू हुआ था उसके अगेंस्ट था ये. इसमें कहा गया कि इंडियंस के पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो कुछ हथियार रख सकें उसके अकॉर्डिंग. तो उसको अंडू करने के लिए कहा गया कि ये वापस लिया जाए जो आर्म्स एक्ट स्टार्ट हुआ था. इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट था ये कि लोगों के पास स्पीच देने का और उनके जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज रेस्ड बाय कांग्रेस. कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी थे जो कि कांग्रेस के द्वारा रेस किया गया. फर्स्ट वन इज हाई रेवेन्यू हैड लेड टू पॉवर्टी इन इंडिया. जितने भी नए नए टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं इंडिया में, जिसके कारण इंडिया के लोग और पुअर से पुअर होते जा रहे हैं. ग्रेन एक्सपोर्ट ऑफ यूरोप हैज़ लेड टू फूड शॉर्टेज. इतने सारी संख्या में जितने भी चीज़ें थी इंडिया में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूरोप में पहुंचाई जा रही थी. यहाँ तक कि खाने की भी चीज़ें जो थी वो ऑलमोस्ट यूरोप में जा रही थी, जिसके कारण यूरोप में चीज़ें बढ़ रही थी और इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड्स हो रहे थे. एंड द लास्ट वन दैट वाज देयर वाज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ. तो जितने भी हायर पोजीशंस थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के पास थे, और जितने भी हाई इनकम सैलरी जो भी मिलती थी वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स अपने घर पहुंचाते थे. मतलब सीधा डायरेक्टली वो यूरोप लेके जा रहे हैं. सो नाउ फाइनली कांग्रेस आर डिमांडेड फॉर. अब जो कांग्रेस है वो डिमांड करता है कि कट इन टैक्सेस. टैक्सेस जो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं उसे घटा दिया जाए. कट इन मिलिट्री एक्सपेंसेस. उसमें ब्रिटिशर्स कुछ ज़्यादा ही मिलिट्री में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसमें कट करने के लिए कहा गया. और वो जो अमाउंट है उसको यूज़ किया जाए इरिगेशन में, जहाँ पे लोग अच्छे से ईजिली ये पेड़ पौधों में पानी पहुंचा करके ईजिली खेती कर पाएँ. तो इरिगेशन प्रोसेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ंड लगा करके उसको डेवलप किया जाए. इट ऑल्सो पास सॉल्ट रिसोल्यूशन. तो सॉल्ट जो था जिसमें टैक्स ज़्यादा लगाए जा रहे थे उसके अगेंस्ट भी उन्होंने ये डिमांड किया कांग्रेस ने. In order to bring awareness, moderate leaders began publishing articles and newspapers. तो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मॉडरेट लीडर्स ने क्या किया? उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स लिखे और उन्होंने फिर अपना स्पीच देना शुरू किया, जिससे उन लोगों को बता सके कि ब्रिटिश जो है वो किस तरह से हम पे अधिकार जमा रहे हैं. तो ये सारे इन्फॉर्मेशन वो लोगों तक पहुंचाने लगे हर जगह. By 1890, various leaders began criticizing the Congress for their politics of prayer. तो 1890 तक कई सारे जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो उनके अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि वो जस्ट कह रहे थे कि आप एक तरह से प्रेयर कर रहे हो, जिससे वो ब्रिटिशर्स नहीं सुनने वाले. दे आर्ग्यूड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इनकरेज्ड पीपल टू फाइट फॉर स्वराज. और वो ये चाहते थे कि लोग लड़ें अपने स्वराज के लिए, अपने इंडिपेंडेंट के लिए, अपने फ्रीडम के लिए. वो ब्रिटिशर से लड़े, ना कि सिर्फ प्रेयर करें और रिक्वेस्ट करें.
जो फोटो आप ऊपर देख रहे हो वो बाल गंगाधर तिलक का है, और जो नीचे वाला फोटो है वो लाला लाजपत राय का है, जो कि मेन रेडिकल हीरो माने जाते हैं। तो मेनली बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर देयर स्वराज। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट स्लोगन था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन सब के बीच ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर ऑफ 1905 क्या किया, उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। उस समय जो बंगाल था वो बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें बिहार और कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा ये सारे इंक्लूडेड थे। तो फाइनली इनमें जो एकजुटता आ रही थी बंगाल लोगों की, तो उनको तोड़ने के लिए ये कदम उठाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, विच वॉज डन टू स्प्लिट द बंगाली पीपल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बाय वाइसराय कर्जन। तो ये स्टेप जो उठाया था वो वाइसराय कर्जन ने उठाया था टू पार्टीशन बंगाल। तो उनके द्वारा बंगाल को पार्टीशन किया गया। तो फाइनली बंगाल जो था उसे दो भागों में बांट दिया गया था। तो मेनली जो दूसरा स्टेट था, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। तो उसको असम के साथ मिला दिया और दूसरे तरफ अनदर वेस्ट बंगाल कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने बंगाल को ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में करके दो भागों में मेनली बांट दिया गया इस बंगाल स्टेट को। उनकी जो एकजुटता थी उन्हें तोड़ने के लिए इस तरह के कदम से उठाए थे। किसने उठाया था? वाइसराय कर्जन ने इन द ईयर ऑफ 1905। जितने भी लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, चाहे वो मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो या फिर रेडिकल्स, लाइक ये एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स दोनों एक ही हैं, तो दोनों मिल करके, लाइक दोनों ग्रुप जो था मॉडरेट और रेडिकल्स का, मिल करके इसके अगेंस्ट गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। और एंड दिस लेड टू दी स्वदेशी मूवमेंट, और ये एक स्वदेशी मूवमेंट की तरह उभर कर सामने आया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इसमें आंध्र प्रदेश में जो ये फेमस था, उसका जो मेन मूवमेंट था उसको नाम दिया गया वंदे मातरम मूवमेंट। और फाइनली ये स्वदेशी मूवमेंट था, उसने कई सारे चेंजेस लाए। पहला उसने क्या किया, उसने स्वदेशी इंटरप्राइजेस को ज़्यादा सपोर्ट किया। जितने भी चीज़ें इंडिया में बनाई गई है, स्वदेशी जितनी भी चीज़ें हैं उसको यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन, इंडिया का जो खुद का जो एजुकेशन है वो दिया जाए, इंस्टेड ऑफ गिविंग द ब्रिटिश एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन देने के बजाय इंडिया का जो खुद का नेशनल एजुकेशन है वो दिया जाए। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, वो उस समय वो फोर्स किया जा रहा था उन्हें कि इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेजेस सीखें। अब इसमें क्या कहा गया कि इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं उसे अपनाया जाए, उसे सीखा जाए, उसे सिखाया जाए स्कूलों में। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो अब लोगों ने मिल करके बॉयकॉट करना शुरू किया किसका, जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे और जितने भी उनके इंस्टीट्यूशंस थे उन सब का। तो लोगों ने अब एक साथ मिल करके इनकी जितनी भी चीज़ें थी उनको बॉयकॉट करना शुरू किया, मतलब उनको यूज़ करना में। और उसी समय एक तरफ दूसरा एक ग्रुप बन रहा था जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ग्रुप था, जो कि 1906 में डेक्का में बना था। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको सपोर्ट किया गया। मेनली इन लोगों ने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, सारे लोग इसके अगेंस्ट थे लेकिन इस ग्रुप ने इसको सपोर्ट किया। एंड दे फॉर्म बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ नवाब्स, और ये जितने भी नवाब्स लोग थे उनके द्वारा ये ऑलमोस्ट फॉर्म किया गया था। और ये जो मुस्लिम लीग था, दे वे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी बैठ करके अगर मीटिंग होती है तो उसमें कुछ सीट्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। हेंस सीट्स वेयर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स इन दी काउंसिल, तो वहाँ पर कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर रिजर्व होनी चाहिए। तो हर जगह उन्होंने अपने डिमांड्स के लिए, अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड करना शुरू किया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुआ था वो स्प्लिट हो गया, दो भागों में बढ़ गया था इन द ईयर ऑफ 1907। तो 1907 में दो ग्रुप बढ़ गया था, एक का नाम था मॉडरेट्स और दूसरे का नाम था रेडिकल्स। मॉडरेट्स जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने जितने भी अधिकार थे उनको मांग रहे थे, और दूसरा रेडिकल्स जो कह रहे थे कि हमें लड़ करके ही अपने अधिकार मिल पाएंगे। तो ये दो ग्रुप ऑलमोस्ट बढ़ चुका था इन द ईयर ऑफ 1907। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों ग्रुप आपस में मिल गए, रीयूनाइट हो गए। कौन से ईयर में? फिर आपस में मिल जाते हैं 1915 में, और उसके बाद ठीक एक साल बाद इन द ईयर ऑफ 1916 इट ज्वाइंड हैंड्स विद मुस्लिम लीग इन लखनऊ एंड बिगिन वर्किंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। और फाइनली 1916 में ये लोग
मुस्लिम लीगियों से भी हाथ मिला लेते हैं कि अब हम सब मिल करके एक साथ एकजुट होकर के ये अपने इंडिया के लिए फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट. As the various groups were coming together, this turned into a mass movement against the Britishers. Peasants, tribes, students, and even Congress. 1920 joined it. So finally जो अब था सारे के सारे लोग मिल करके एकजुट होकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, चाहे वो कोई पीजेंट्स हो या फिर कोई ट्राइबल्स हो, कोई स्टूडेंट्स हो, वुमेन्स हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हों. अब आकर के सब एक साथ जुट होकर के मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जुट गए थे. मेनली इसके पीछे रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मास नेशनलिज्म? पहला तो ये रीजन था कि ये जो टाइम चल रहा था वो 1915 का ऑलमोस्ट चल रहा था. इट मीन्स वो 1914 से 1918 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बीच का टाइम था. तो इसमें ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंसेस ड्यू टू वर्ल्ड वॉर. तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे थे मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स को भेजना था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. दूसरा, राइजेस इन टैक्सेस. तो उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया. फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू आर्मी, और आर्मी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घुसाया जा रहा था. उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि आपको आर्मी अभी ज्वाइन करनी है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए थे. So Indians businessmen earned profits during this time, but overall it was a burdening time period. Although अभी तक जितने भी बिजनेसमैन थे इंडिया में वो उनको प्रॉफिट ही मिल रहा था, लेकिन एट लास्ट ये सब उनके लिए बर्डन हो गया, क्योंकि उनको उस समय फोर्स किया जा रहा था कि जितने भी चीज़ें हैं जो कि लड़ाई में ज़रूरत पड़ती है उन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा था. So finally now this was the time period when India was in the need of national leader who could lead them in their struggle against the Britishers. So finally अब हमें किसी एक मेन लीडर की ज़रूरत थी जो कि पूरे के पूरे कंट्री को एक साथ लेके जुट होकर के चल सके आगे. तो वो लीडर जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसे हम गांधीयन पीरियड के नाम से जानते हैं. थैंक यू. थैंक यू.